Hi everyone, welcome back to Nuskrit, and in this video we will be building a very simple project on React which is a translator API. Okay, so let me just explain what we are gonna build. So as you can see on my screen, हम एक इस तरह का पैनल बनाएंगे एंड जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया ये वाला है, ठीक है, और एक हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया है. यहाँ पे हमने कुछ कंट्रोल्स दिए हुए जैसे कि वॉल्यूम बटन, कॉपी बटन. यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो इन दोनों को, राइट. तो यू कैन बेसिकली सेंड द कंटेंट ऑफ दिस टेक्स्ट एरिया टू दिस and the content of this text area to this. Similarly, आप language भी exchange कर पाओगे using this button. Again, these are the controls of the second part. Then यहाँ पे we have a simple button upon which, like, if we click on this button, we will be able to translate the text over here and that will be displayed over here. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा UI हम बनाएंगे. How we will achieve it? Like, are we gonna build our own translator logic or we will be using something else? So there's a API. It's my memory API. Let me just show it to you. So my memory is the website mymemory.translated.net, and this website basically gives us the ability, or you can say like API, to translate those things, right? तो हम इस API का use करेंगे. You can click on that translation API and you will be landed over here. तो यहाँ पे we have this get API. This is the API that we will be using, right? This is the API that we will be using. So it will basically take the text and it will take the language pair, like in which we want to convert this particular text. Okay, so and we will get our response. Okay, तो ये वाला API URL होगा जो हम यूज़ करेंगे, and I will show it to you how we will be basically using it. So this is all about the project that we will be building, and without wasting any time, let's get started. You might be having one question like, what is the prerequisite of this particular video? So I am assuming that you should be having a basic idea of CSS and some knowledge of React. If I try to be honest, so I would be expecting that you know about use state hook. एंड आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम एक कैसे कंपोनेंट्स बनाते हैं, है ना, और कैसे एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर हम कॉल कर सकते हैं. तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको रिएक्ट का ये होना चाहिए. एंड लाइक यू कैन यूज लाइक बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS, बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल ट्राई टू यूज और यू कैन से लाइक आई विल ट्राई टू राइट CSS फ्रॉम स्क्रैच. ओके, तो you can follow me along, and if you want to use bootstrap and all, so you can use that. Okay, but without wasting any time, let's get started. So I'm just opening my terminal, and first of all I will go into some directory. So let me just documents, and then let's say let me just go to React folder. Okay, and now what I'll do, I'll simply say that npx create React app, and you can give it the project name. So translator app. So this is the app name that I'm gonna build, and this is the command npx create React app. Like, you should be having npm npx installed in your system. If you are not having those things installed, then I will attach the the commands how you can actually install them. Okay, you can find the link in the description. It will take some time to install this particular project, so let's wait for some time, and eventually this project will be installed into this particular directory under document/react. We will see this kind of output. That means it is successful installed. Now what you can do is you can basically go to this React folder, the project that you have created. So it is React translator app, and if you hit enter, now you are in the directory. So if you ls into this particular, you can see that there are some of the files and folders that have been downloaded into this particular folder. Okay, so now what we can do is we can open this particular project, this particular folder into VS Code. So let me just enter this command code dot. If you are not able to run this command in your system code dot, then you can actually open it manually by launching an empty window of VS Code, and then you can click on open button, and then you can actually load the project. So if I click on this code dot, so this will open this project into my VS Code, and let me just zoom a little bit. And so you can see that we have a few files and public folder and src folder into our React project. And like, guys, you should know that whatever code is there in app.js file, that is actually visible onto the screen. So if I just show it to you, let's open a new terminal over here in the VS Code itself, and just enter npm start. Okay, if you click on npm start, so this will start your project and it will open in a new Chrome window or whatever. So you can see that this is the project that we are able to see it right now. And अगर मैं आपको ये कंफर्मेशन दूं कि वही कोड जो app.js के अंदर लिखा है वही ये कोड यहाँ पे दिख रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो. लेट्स रिमूव दिस पैराग्राफ एंड लेट्स राइट इन नो स्क्रिप्ट.
okay, and I am saving it, and if I now go back to my Chrome screen, you can see that the text that was appearing previously, it has now been replaced by InnoScript. ठीक है, फिर एक काम करते हैं फटाफट से, let's go back and try to remove the entire code from app.js file. तो ये पूरा कोड मैं यहाँ से हटा दूंगा, okay. तो it is giving me error because it should return something. Now let's do one thing, let's create a div over here and let's give it a class. ठीक है, मैं डायरेक्टली इस चीज़ को बता रहा हूँ. सो आई हैव क्रिएटेड अ डिव ओवर हियर विच हैज़ अ क्लास नेम कंटेनर. एक चीज़ और भी करेंगे, है ना, यहाँ पे जाते हैं SRC के अंदर और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स नाम का. ठीक है, तो इस कंपोनेंट्स के अंदर वैसे हम एक ही कंपोनेंट बनाने वाले हैं, तो आप इसको बाहर भी रख सकते हो, बट इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस टू हैव अ सेपरेट कंपोनेंट फोल्डर एंड ट्राई टू like create all the components inside this particular folder. So let's create a new file, translator.js. okay, and within this file basically I'm going to create that particular component. So what I'll do, I'll say function, let me zoom, I'll say simple function and translator, and this will return some HTML. okay, so as of now let's try to return let's have a simple div in which we are writing a simple paragraph, let's say hello, so that like you can see, okay, something we have got. And now what we'll do, we will simply export this particular component. So export default, and we will write the component name translator. And now you can go back to this app.js, and within this div you can actually call this particular component translator. Okay, you click on it, and if it is not loaded by default, so you just come, like bring your cursor over here and click control space. So if you will click on control space, so it will show the hints and you can click on enter, and this will be importing the translator component. अगर आप नहीं कर पा रहे import, तो आप इसको manually ऐसे करके लिख सकते हो, import translator, and this will import the translator component. Now let's go back to the Chrome screen and see whether we are able to see hello or not. Okay, so you can see that we are able to see something written over here. Now let's quickly write the HTML. okay, so हम क्या करने वाले, देखो हमने एक मेन कंटेनर बना लिया. ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था कि इफ आई जस्ट शो यू वंस अगेन, सो यू कैन सी दैट वी हैव वन कंटेनर. ओके, एंड विद इन दिस कंटेनर अब हम कुछ चीज़ें बनाएंगे, राइट. तो अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दूँ तो कैसे बनाएंगे, तो देखो आप एक बार. तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो पूरा है ना, दिस एंटायर पार्ट, दिस एंटायर पार्ट इज योर कंटेनर. ओके, दिस एंटायर पार्ट इज योर कंटेनर. जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो बॉडी का पार्ट है. ओके, ये बॉडी का पार्ट है, ये कंटेनर है. अब इस कंटेनर के अंदर मैं दो चीज़ें बनाऊंगा. देखो, तो इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला एक पोर्शन अलग बनाऊंगा. ठीक है, और इस पोर्शन को मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से रैपर. तो ये मेरा एक रैपर है. ठीक है, दिस इज माई रैपर, एंड इसके नीचे मैं एक बनाऊंगा बटन. अब इस रैपर के अंदर दो चीज़ें होंगी. एक डिव तो होगा मेरे पास ये वाला, जिसके अंदर दो टेक्स्ट एरिया होंगे. ठीक है, एक डिव तो होगा मेरे पास ये वाला, और एक डिव होगा मेरे पास ये वाला, जिसके अंदर मैं कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स बनाऊंगा, जिसमें एक पोर्शन ये वाला पोर्शन है, एक पोर्शन ये वाला पोर्शन है, और एक पोर्शन ये वाला पोर्शन है. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू डू दैट. देखो अभी के लिए क्या करना है, कंटेनर के अंदर एक रैपर बनाना है. तो एक तो रैपर बनाएंगे और एक बटन बनाएंगे. ठीक है, लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू अचीव दैट. तो ट्रांसलेटर के अंदर जाते हैं. तो क्योंकि कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर मैंने ट्रांसलेटर लिखा है, तो इस ट्रांसलेटर के अंदर मैं सारा लॉजिक लिखूंगा अपना. तो मैंने कहा मैं एक डिव बनाऊंगा और उसको मैं क्लास दूंगा एक रैपर नाम की. ठीक है, अब इसके अंदर एक तो टेक्स्ट एरिया होगा और इसके लास्ट में होगा मेरे पास बटन. ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. मैंने एक पूरा डिव बनाया, उस डिव के अंदर मैं एक डिव बना रहा हूँ, और लाइक उस डिव के अंदर मैं अपना पूरा लॉजिक लिखूंगा, टेक्स्ट एरिया और जो कंट्रोल्स है, और लास्ट में मैं एक बटन बनाऊंगा. ठीक है, तो इस बटन का लेट्स से कुछ नाम दे देते हैं अभी के लिए. इसको ऐसे लिखते हैं ट्रांसलेट. ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर दिखे. और यहाँ पे फटाफट से दो टेक्स्ट एरिया बनाते हैं. इसको भी के लिए बंद कर देते हैं क्योंकि मेनली कोड हमें यहीं पे लिखना है अब. तो दो टेक्स्ट एरिया हम बनाने की कोशिश करते हैं फटाफट. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू मेक देम. टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पे इसका नेम दे देता है फ्रॉम, इसकी आईडी दे देता है फ्रॉम, क्योंकि इन केस मुझे आईडी और नेम से इसको एक्सेस करना हुआ तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा. कॉलम और रोज की मेरे को जरूरत नहीं है, तो उनको मैं हटा देता हूँ. ठीक है, और बाकी चीज़ें हम बाद में, एक प्लेस होल्डर दे सकते हो आप. ठीक है, प्लेस होल्डर में लिख दो लेट्स से एंटर टेक्स्ट. ठीक है, आपको दिखना चाहिए वो एंटर टेक्स्ट नाम का बटन. और इसके अलावा आई थिंक वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स. ठीक है, एक काम और कर सकते हैं आप, इसको क्लास नेम और दे दो एक, कि इन केस अगर मुझे इस पर कुछ अप्लाई करना हुआ, ठीक है, तो मैं कर पाऊँ. तो मैंने कहा फ्रॉम टेक्स्ट एक दे दो. ठीक है, और इसमें भी ना एक काम करेंगे हम. ठीक है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, टेक्स्ट एरिया को. तो इसका मैं नाम देता हूँ टू टेक्स्ट, क्योंकि मैं इसके अंदर फ्रॉम से टू, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं इसको अलग क्यों दे रहा हूँ. तो इसका ID 2,
और इसमें मुझे प्लेस होल्डर देने की ज़रूरत नहीं है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ स्टार्टिंग में दिखाना नहीं चाह रहा। और एक काम करते हैं, इन दोनों टेक्स्ट एरिया को ना एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मान लो मुझे कुछ कॉमन CSS लगानी हुई दोनों ही टेक्स्ट एरिया पे, तो मैं उसको लगा पाऊंगा। तो इसको लग देता है टेक्स्ट इनपुट के नाम से, ठीक है। और इस डिव को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे क्लोज करेंगे एंड इनको थोड़ा सा सही से अरेंज कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब इतना हमने बना लिया है। Now if I go back to the Chrome screen, so you will be able to see that we have got two text areas. Okay, let me zoom it. So you can see that we have got two text areas. एक text area के अंदर प्लेस होल्डर दिख रहा है, एक के अंदर नहीं दिख रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ लिख ना पाऊँ, राइट, बिकॉज यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखेगा, मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा, राइट। आप हमेशा बस इसी पे लिख सकते हो। तो वॉट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली अप्लाई वन प्रॉपर्टी विच इज रीड ओनली। नाउ इफ आई गो बैक यू कैन सी दैट अब हम इसमें कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, और वहाँ पे ए इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो हमने लिखा हुआ है पहले से ही। तो अगर रिफ्रेश कर दें उसको तो वो चला जाएगा और अब आप यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस अ वेरी सिंपल थिंग। अब नेक्स्ट चीज़ पे हम फोकस करते हैं विच इज़, तो ये मैंने क्या किया, देखो रैपर के अंदर मैंने एक डिव बनाया जिसके अंदर मेरा पूरा टेक्स्ट एरिया वाला लॉजिक है, और अब मैं कुछ कंट्रोल्स बनाऊंगा। तो मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं 3 लिस्ट रखूंगा, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट एंड तीसरी लिस्ट। अब मैं क्या करूंगा, देखो फर्स्ट लिस्ट के अंदर देख समझने की कोशिश करना। पहली लिस्ट मेरे पास होगी, अगर मैं आपको दिखाऊं वापस जाके, तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर मैं 3 चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको हटा देता हूं एक बार। फर्स्ट लिस्ट के अंदर मैं 3 चीज़ें बनाऊंगा, और वो 3 चीज़ें क्या होंगी, एक तो ये आइकन, एक ये आइकन, इसको छोड़ दो भी क्योंकि ये बॉर्डर है, सो बॉर्डर को हम CSS से हैंडल कर लेंगे, और एक ये वाली चीज़। तो एक तो है मेरे पास फर्स्ट लिस्ट के अंदर ये 3 चीज़ें, दूसरे लिस्ट के अंदर मेरे पास ये 3 चीज़ें होंगी, और तीसरे लिस्ट के पास मेरे पास ये वाली चीज़ें होंगी, एक्सचेंज, ठीक है। तो 3 लिस्ट है, पहली लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। तो इनको फटाफट बना देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हमें आइकन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो और इसको भी थोड़ा सही से बनाने के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं ना पहले तो लिस्ट को कुछ क्लास देता हूँ, ताकि अगर मुझे कुछ अलग से कुछ अप्लाई करना हुआ इस वाली लिस्ट पे तो मैं वो कर पाऊँ। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ, लेट्स से रो फ्रॉम, एक रो और एक फ्रॉम, मान लो मैं ये क्लास देता हूँ इसको, ठीक है। और सिमिलरली मैं एक क्लास देता हूँ इसको, ठीक है, इस लिस्ट को, रो और 2, ठीक है। एक क्लास से भी काम चल सकता है, बट मान लो फॉर एग्जांपल मुझे अलग से कुछ इस पे लगाना हुआ और अलग से मुझे इस पे कुछ लगाना हुआ जो कि ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है वो चीज़ की। तो मैंने इसलिए अलग अलग क्लासेस दी है, रो एंड फ्रॉम अलग एंड रो और 2 अलग, ठीक है। और इसको भी एक क्लास देते हैं, लेट्स से एक्सचेंज, ठीक है। और अगर मुझे इन सब पे कुछ कॉमन प्रॉपर्टी लगानी हुई तो उसके लिए मैं क्लास देना चाहता हूँ UL को, विच इज़ कंट्रोल्स, ठीक है। मान लो मेरे को सपोज करो इन सबको एक सिंगल रो में लेके आना है, तो मैं कंट्रोल्स पे एक क्लास लाइक कंट्रोल्स पे मैं एक स्टाइलिंग लगा दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये सारे के सारे जितना भी कंट्रोल्स क्लास के अंदर सारा कुछ होगा वो सब का सब एक रो में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास लगा लेता हूँ। तो आई थिंक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्लियर है। अब मैं इस लिस्ट के अंदर जाता हूँ और इस लिस्ट के अंदर हम अपना जो भी हमें बनाना है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखो मेरे को उसके अंदर 2 चीज़ें चाहिए। एक तो मेरे पास होगा आइकन्स, तो मैं क्लास देता हूँ आइकन्स। मान लो मुझे आइकन्स पे कुछ लगाना हुआ तो मैं आइकन्स पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर इस डिव के अंदर तो मैं रखूँगा आइकन्स, और एक होगा मेरे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक होगा मेरे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसको नाम ID अभी के लिए हम कुछ नहीं दे रहे, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस देते हैं हम, ठीक है। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन ऐसे करके देता हूँ, फिर मान लो मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ, दूसरा ऑप्शन, मान लो सेकंड ऑप्शन, जस्ट टू शो इट टू यू। एंड व्हाट विल डू, एक काम करते, देखो अभी मुझे इसके अंदर आइकन्स लेके आना है, ठीक है। एक वॉल्यूम का आइकन लेके आऊँगा और एक कॉपी बटन का आइकन लेके आऊँगा। तो अब ऐसे मैं खुद के आइकन्स तो बना नहीं सकता, तो व्हाट विल डू, हम एक काम करेंगे, इस index.html में ना फॉन्ट ऑसम का CDN यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैं लिंक ऑलरेडी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। लाइक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसको फॉलो कर सकते हो, तो यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कम टू दिस index.html फाइल एंड यहाँ पे कहीं पे भी आप हेड टैग के अंदर वो लिंक पेस्ट कर दो। तो ये जो है ये CDN है, CDN लिंक है फॉन्ट ऑसम का। तो आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू यूज ऑल द all the links, or you can say like all the icons. Now what I'll do, I'll simply go to this particular div once again, and now I will be writing some icons. I will be attaching some icons over here. So let's try to, and if you want to see like what you can do is you can go Font Awesome and you can click on this website, and now you can click on icons and you can choose icons of your choice. Let's say for example मैं लिखता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम, मेरे को आइकन चाहिए वॉल्यूम, ठीक है। तो फ्री पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ये वाला आई थिंक दिस इज़ गुड, वॉल्यूम, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करके आप ये HTML उठा लो एंड इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो मैंने वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम लिख लिया। सिमिलरली आपको कुछ और चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए होगा, अभी हमें एक चाहिए होगा एक्सचेंज, तो एक्सचेंज वाला भी उठा लेते हैं। जैसे एक्सचेंज में आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड, तो इसको उठा लेते हैं एंड इसको हम एक्सचेंज वाली लिस्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है।
इस वाले लिस्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे इसको। और अभी मेरे को एक चाहिए क्या, एक मेरे को चाहिए कॉपी बटन। सो लेट्स से कॉपी एंड यू कैन पिक दिस वन, आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड। लेट्स से दिस को इसको उठा लिया एंड इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस डिव के अंदर मैंने दो लाइक आइकन्स लगाए, एक तो वॉल्यूम का और एक कॉपी का। सिमिलरली देखो ये सारा जो मैंने यहाँ पे लगाया ये सारा मुझे वहाँ पे भी चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें मैं एक चीज़ करूँगा कि जो मेरा सिलेक्ट वाला पार्ट है ना उसको मैं ऊपर रखूँगा ताकि वो सिमेट्रिक दिखे। तो सिलेक्ट वाला पार्ट मैंने ऊपर रखा और एक काम करते हैं इसमें कॉपी बटन को ऊपर रखते हैं ताकि प्रॉपर सिमेट्रिक दिखे वो हमें। तो आई विल शो इट टू यू, जस्ट 1 सेकेंड। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ बना लिया इसमें। अब एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक टू द क्रोम स्क्रीन एंड लेट्स सी कि हमें क्या मिल चुका है। देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये वॉल्यूम बटन है, कॉपी बटन है, देन ऑप्शन बटन है, देन एक्सचेंज बटन है, देन ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए देन कॉपी एंड देन वॉल्यूम, राइट। तो मैंने इन सबको एक फॉर्मेट में रखा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो आई थिंक बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो हमारा बन चुका है। हमें 2 टेक्स्ट एरिया चाहिए थे, हमें ये सारे के सारे कंट्रोल चाहिए थे और हमें एक बटन चाहिए था। इफ़ यू जस्ट कंपेयर इट विद दिस, आई थिंक वी हैव अचीव्ड ऑल ऑफ द थिंग्स, ओके। हमें कंट्रोल सारे कंट्रोल मिल चुके हैं, बटन मिल चुका है, 2 टेक्स्ट एरिया मिल चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द CSS फॉर दिस। और एक काम और करते हैं, मान लो से फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या होगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर देखो आप, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो सिर्फ कंटेंट यहाँ पे जो लिखा होगा वो कॉपी हो, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ कॉपी बटन पे, तो मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे कंटेंट लिखा होगा वो सिर्फ कॉपी हो। सिमिलरली अगर मैं इस साउंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो कंटेंट इस पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया का अटर करके दिखाएगा, राइट, लाइक बोल के दिखाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया का जो भी लाइक कंटेंट होगा वो उसको लाइक इट विल स्पीक, ओके। तो पॉइंट इज कि मुझे इन आइकन्स को अलग से आइडेंटिफाई करना होगा। और अगर मुझे किसी भी HTML टैग को अलग से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो या तो मैं उसको क्लास नेम से आइडेंटिफाई कर सकता हूं या फिर मैं उसको उसकी आईडी से आइडेंटिफाई कर सकता हूं, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आईडी या फिर आप क्लास दे सकते हो फॉर द सिंप्लिसिटी। लेट्स से आई एम गिविंग इट टू आईडी सम। तो मान लो इसका आईडी है फ्रॉम और सिमिलरली इसका आईडी भी लेट्स से फ्रॉम है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो मुझे ये पता लग जाएगा, ठीक है, कॉपी बटन पे क्लिक किया आपने और वो किस पर्टिकुलर कॉपी बटन का लाइक आइकन है, कॉपी आइकन किस पर्टिकुलर लाइक किस पर्टिकुलर उसका है टेक्स्ट एरिया का, वेदर इट इज फ्रॉम पार्ट और फ्रॉम टू पार्ट। तो मुझे फ्रॉम वाला मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरे पास आइकन्स होंगे उनको मैं आईडी दे दूंगा 2, ठीक है। और सिमिलरली मैं इसको भी आईडी दे सकता हूँ 2, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम एक काम करते हैं, आई थिंक इतना ही हमें HTML यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, ग्रेट। अब हम एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू राइट सम CSS। तो हम क्या करेंगे, एज यू कैन सी दैट वी हैव अ फाइल index.css ओवर हियर। हम इस पूरे को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और हम अपना खुद का स्टार्ट करते बनाना। तो देखो मैं कुछ पर्टिकुलर CSS अप्लाई करना चाहूँगा जो कि मेरे पूरे के पूरे स्क्रीन पे लगेगा। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ना यहाँ पे देखो ये कुछ मार्जिन लेके रखा है। अगर आप बहुत इसको क्लोजली देखोगे, यहाँ से जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये ना ऊपर से एंड लेफ्ट साइड से कुछ मार्जिन लेके रखा है। तो मैं इसका खुद पूरा मार्जिन 0 कर देता हूँ। पहले तो मार्जिन और पैडिंग जो भी इसने ले रखी है सब कुछ 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली से मार्जिन 0, ओके, एंड पैडिंग नॉट ऑटो बट 0, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यू कैन सी दैट नाउ देयर इज नो पैडिंग एट ऑल। यू कैन सी दैट मैं पूरा आपको एक्सट्रैक्ट करके इसको दिखा रहा हूँ, देयर इज नो पैडिंग एट ऑल, ठीक है। तो पैडिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें एक काम करेंगे। देखो यहाँ पे ना मेरा एक फेवरेट फॉन्ट है जो मुझे पसंद है, फॉन्ट फैमिली मैं लिखता हूँ पॉपिंस, ठीक है। लाइक आई यूज दिस फॉन्ट एवरीवेयर ऑन माई वेबसाइट, ऑन माई सम इफ आई एम डिजाइनिंग समथिंग फॉर इंस्टाग्राम और वट एवर। तो मुझे फॉन्ट पर्सनली काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैं पॉपिंस फॉन्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आफ्टर दिस यू कैन सी दैट देयर विल बी सम चेंजेस। यू कैन सी दैट थोड़ा सा चेंजेस आए यहाँ पे मेरे फॉन्ट में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा बॉडी पे चीज़ें अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको। तो बैकग्राउंड मैंने दिया अगेन 600044। अगेन ये मेरा फेवरेट कलर है, लाइक नॉट फेवरेट, लाइक आई एम यूजिंग दिस कलर ऑन माई वेबसाइट एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो वही कलर मैं रखता हूँ, मुझे याद है कलर कोड। तो 600044 मैंने इसका बैकग्राउंड रखा एंड आफ्टर सीइंग इट यू कैन सी दैट एवरीथिंग हैज कन्वर्टेड इनटू लाइक दैट पर्टिकुलर कलर 600044, ओके। एंड अब एक काम करते हैं, देखो एक फ्लेक्स कमांड होती है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप पूरे कंटेंट को एक ऑर्गेनाइज कर पाते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फटाफट से इसको कुछ CSS दे दूंगा। आई एम अज्यूमिंग, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज़्यादा, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव आइडियाज ऑफ दीज थिंग्स। तो मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया।
पूरे आइटम्स को मैं अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर, तो मैंने सेंटर अप्लाई किया। और मैं उनको जस्टिफाई कंटेंट करना चाहता हूँ सेंटर, ताकि प्रॉपरली वो सेंटर्ड में दिखे। और मैं अभी क्या होगा, इन 4 CSS को अप्लाई करने से वो सारा का सारा बीच में आ चुका होगा। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, देखो पूरा का पूरा बीच में जा चुका है। बट अभी मेरे को चाहिए उसको बिल्कुल मिड में, तो मैं उसके लिए मिन हाइट दे दूंगा, मेन हाइट 100 VH। उससे क्या होगा, वो कंटेंट पूरा बीच में आ जाएगा। तो यू कैन सी दैट ये पूरा कंटेंट है बीच में आ चुका है। अब ये मेरा कंटेनर है, मुझे इस कंटेनर पे थोड़ा CSS अप्लाई करना है। तो लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू राइट डॉट कंटेनर। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दैट वी गेव वन डिव कंटेनर क्लास। तो ये वो जो कंटेनर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको फटाफट कुछ CSS हम अप्लाई करेंगे इस पर। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी कुछ मैक्स विड्थ को सेट करते हैं विच इज़ 700 पिक्सल। ठीक है, और अगर कम लगेगी तो हम ज़्यादा कर लेंगे बाद में। ठीक है, विड्थ इसकी 100% रखते हैं कि 700 पिक्सल में विड्थ उसकी 100% होगी। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर हम वाइट रखते हैं, वैसे वो ऑलरेडी वाइट है बट वाइट रख लो इसको। एंड इसके अलावा मैं उस पर्टिकुलर जो भी मेरा वो कंटेनर होगा उसको कुछ विड्थ देना चाहता हूँ। ठीक है, सॉरी उसकी रेडियस कुछ रखना चाहता हूँ। तो 10 पिक्सल की मैं बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा राउंडेड दिखे। एंड उसके अंदर का कंटेंट को मैं चाहता हूँ कि वो कुछ पर्टिकुलर पैडिंग मेंटेन करे, कुछ स्पेस मेंटेन करे फ्रॉम द कंटेनर। जो भी उसके अंदर मैं टेक्स्ट एरिया बनाऊंगा, बटन बनाऊंगा, वो पूरा कंटेंट 30 पिक्सल की पैडिंग मेंटेन करे। ठीक है, एंड फिर मैं उस बॉक्स को कुछ शेडो देना चाहता हूँ। ठीक है, तो बॉक्स को शेडो दे सकते हैं। तो बॉक्स की शेडो आप XYZ की टर्म्स में देते हो, तो मैं उसको इस तरीके से रखता हूँ 0, 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। और आप कलर दे सकते हो कि किस कलर का, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कलर की पैडिंग, लाइक ब्लैक कलर का शेडो थोड़ा उसको मेंटेन करना चाहता हूँ। तो अब देखो, तो ये हमारा काफ़ी सही दिख रहा है अब। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने कुछ XYZ पे थोड़ा थोड़ा इसमें बॉक्स शेडो दिया है, एक कंटेनर बनाया जिसका बैकग्राउंड कलर हमने वाइट दिया और इसको राउंड कर दिया। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे दी। अगर देखो आप पैडिंग ज़्यादा कर देते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल पैडिंग 30 की जगह यहाँ पर 100 कर देते हो, तो पता है बहुत ज़्यादा स्पेस मेंटेन करेगा। देखो, तो ये होता है कंटेंट अंदर का, अगर आप पैडिंग देते हो कंटेनर पे तो कंटेंट अंदर का डिस्टेंस मेंटेन करेगा। बट लेट्स कीप इट 30 ओनली बिकॉज 30 इज लुकिंग गुड। ठीक है, दैट्स वॉट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। ठीक है, तो अभी काफ़ी कुछ सही दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो मेंटेन करेंगे सबसे पहले, वो हम थोड़ा इन कंट्रोल्स पे फोकस करते हैं। लेट्स ट्राई टू ब्रिंग ऑल द कंट्रोल्स इनटू अ सिंगल रो। ठीक है, तो कंट्रोल्स पे फोकस करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या समझते हैं कि जो ये कंट्रोल्स होते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख पा रहे हो कि अभी जो हमें कंट्रोल्स दिख रहे हैं वो अलग अलग रोज में दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली लिस्ट एक अलग रो में है, ये वाली लिस्ट एक अलग रो में है और ये वाली लिस्ट एक अलग रो में है। राइट, तो आप देख सकते हो हमारा जो करंट आउटपुट है वो अलग अलग रोज में है। तो ये कंपोनेंट पूरा अलग रो में, ये कंपोनेंट अलग रो में, ये कंपोनेंट अलग रो में। तो ये जो तीनों के तीनों लिस्ट है ना, 3 डिफरेंट लिस्ट, ये कंट्रोल्स नाम की क्लास के अंदर है। आप देख सकते हो अपना HTML। तो कंट्रोल्स नाम की आपने क्लास बनाई है, उसके अंदर 3 अलग अलग लिस्ट है। तो मैं इस कंट्रोल्स पे फ्लेक्स कर दूंगा। ठीक है, कैसे? देखो, मैं बोलूंगा कि डॉट कंट्रोल्स और उसका डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। ठीक है, उससे क्या होगा कि सारे के सारे एक रो में आ जाएंगे। देखो, एक कंपोनेंट आपका ये है पूरा, फिर एक एक्सचेंज बटन है और फिर ये पूरा कंटेंट है। तो तीनों लिस्ट को सेम रो में ले आया। ठीक है, ये एक रो में नहीं दिखेगा अभी आपको ये, क्योंकि ये अपने आप में एक लिस्ट है। तो मैं उस लिस्ट पे भी चाहता हूँ कि जो कंट्रोल्स मैं लाइक लिस्ट पे भी मैं वो सारे के सारे कंट्रोल्स लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो अभी देखो क्या होगा। अभी यू कैन सी दैट एवरीथिंग हैज नाउ इनटू अ सिंगल रो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सारे कंट्रोल्स तीनों लिस्ट को मैं एक सिंगल रो में चाहता हूँ, फिर अंदर जो लिस्ट के अंदर जो कंटेंट था उनको भी मैंने सेम चीज़ पे लगा दिया। तो जब आप कॉमन CSS किसी 2 अलग अलग कंपोनेंट्स पे लगाना चाहते हो तो क्लास पे और टैग पे आप इस तरीके से लगा सकते हो, कॉमा सेपरेट करके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ और भी लगाना चाहते हैं, जैसे कि अलाइन आइटम, हर एक आइटम को सेंटर कर दो, जस्टिफाई कर दो। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट कर दो, स्पेस बिटवीन। तो 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती है, अराउंड, बिटवीन, इवनली। हम बिटवीन रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा बीच में स्पेस प्रॉपर्ली मेंटेन करेगा। और एक काम और करना चाहता हूँ, कर्सर पॉइंटर। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं उस पर हॉवर करूँ किसी भी आइकन पे, तो वो नॉर्मल कर्सर से हैंड वाला स्ट्रक्चर है। जैसे देखो दिखाता हूँ, अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ एक बार। Now if I try to hover on this any of the icons like volume icon और this copy icon, तो आप देख रहे हो कि वो कर्सर पॉइंटर है। देखो ध्यान से, लाइक कर्सर वो एरो वाला कर्सर है। अगर मैं इसको पॉइंटर कर दूंगा तो इससे क्या होगा, वो हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, हैंड में कन्वर्ट हो गया, आप देख पा रहे हो राइट। चलो, ये काफ़ी सही लग रहा है। और देखो, जब आप कोई लिस्ट जब आप लिस्ट पे कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करते हो ना, जैसे कि आपने अलाइन आइटम किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो वो स्टाइलिंग डॉट्स को रिमूव कर देता है, बिकॉज अब आप उसके खुद की कस्टम स्टाइलिंग दे रहे हो। ठीक है, तो वो डॉट्स यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। चलो ग्रेट, तो आई थिंक ये दिस इज लुकिंग गुड। ठीक है, अब इसके अलावा मैं क्या करना चाहता हूँ बताता हूँ एक चीज़। देखो,
अब आप देख पा रहे हो कि जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, वॉल्यूम बटन, कॉपी बटन, ये काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, देखो मैं कैसे लिखूँगा, डॉट कंट्रोल्स, ठीक है, डॉट कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स के अंदर जाओ, कंट्रोल्स के अंदर आप जाओगे तो आपको रो दिखेगी। अब रो क्लास यहाँ पे भी है और रो क्लास यहाँ पे भी है, तो उस रो क्लास के अंदर जाना है, तो डॉट रो, एंड रो क्लास के अंदर जाके आपको आइकन्स दिखेंगे। तो एक तो इस आइकन की बात कर रहा हूँ और एक इस आइकन की बात कर रहा हूँ, इस आइकन की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, तो इस आइकन्स पे जाएंगे और फिर उस आइकन के अंदर जो आई है उस पे जाऊँगा मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक हिरार्की फॉलो की, कंट्रोल्स के अंदर रो पे जाओ, ठीक है, और उसके बाद रो पे जाने के बाद, रो पे जाने के बाद आइकन्स पे जाओ, और आइकन्स पे जाने के बाद आपको ये दो आई बटन दिखेंगे, लाइक दो आइकन्स। तो इन आइकन्स पे हमें कुछ अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, थोड़ी थोड़ी विड्थ देना चाहता हूँ ताकि वो अलग अलग दिखे। तो मैंने कहा विड्थ दे दो इसकी कुछ 40 पिक्सल के आसपास, और इसका कुछ फ़ॉन्ट साइज़ दे दो 16-18 पिक्सल के आसपास, ठीक है। और कलर दे दो, कलर उसका हम थोड़ा ग्रेइश रखना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो एक ग्रे कलर मेरे को याद है, B7 वो दे देते हैं। एंड अगेन कर्सर पॉइंटर की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी कर्सर पॉइंटर है, और जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा स्पेस मेंटेन कर लिया इसने यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेस दे दिया, यहाँ पे कुछ स्पेस दे दिया, यहाँ पे कुछ इसने स्पेस ले लिया विड्थ, और यहाँ पे कुछ स्पेस ले लिया इसने विड्थ, ठीक है। तो ये काफ़ी सही दिख रहा है। अभी और भी चीज़ें हम इसमें करेंगे, बट लेट्स वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ, दिस इज़ लुकिंग गुड, ओके। एंड ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब देखो इसमें एक काम करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, देखो कि ये वाला जो है ना, मैं इसमें यहाँ पे एक बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो राइट वाला जो पार्ट है, सॉरी लेफ्ट वाला जो पार्ट है, मतलब फ्रॉम वाला, उसके जो आइकन्स है ना, उस आइकन्स को मैं राइट में एक बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो कैसे लिखूंगा देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि डॉट कंट्रोल्स के अंदर जाओ, कंट्रोल्स के अंदर रो पे जाओ, और रो पे जो फ्रॉम वाला है ना, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि जब किसी पर्टिकुलर डिफ पे या किसी भी टैग पे हम दो क्लासेस अलग अलग आते हैं तो डॉट डॉट करके लगाएंगे, डॉट रो डॉट फ्रॉम। तो मैं किस पर्टिकुलर डिफ की बात कर रहा हूँ, किस पर्टिकुलर आइकन की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर आइकन की बात कर रहा हूँ, डॉट रो डॉट फ्रॉम, और इन आइकन्स की बात करूंगा, इस वाले आइकन्स की बात करूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका जो आइकन्स है उस आइकन्स में मैं एक लगाता हूँ, उस आइकन्स में मैं क्या लगाऊंगा कि थोड़ी सी पैडिंग दे दो राइट से। तो मैं चाहता हूँ कि राइट से थोड़ी पैडिंग मिल जाए 15 पिक्सल के अराउंड, और उसमें बॉर्डर देना चाहता हूँ राइट में, ठीक है। तो बॉर्डर राइट में कितना देना चाहता हूँ, लेट्स से 1 पिक्सल का देना चाहता हूँ सॉलिड, और थोड़ा कोई कलर रखेंगे, ठीक है, CC, ये थोड़ा ग्रेइश कलर होता है, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो इसने यहाँ पे ये दे दिया हमें, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे एक बॉर्डर दिया, आपको दिख रहा होगा, मैंने काफ़ी जूम कर लिया है। अभी इस पर भी हम मेंटेन करेंगे, जो सिलेक्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट पे थोड़ी सी अभी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो तब आपको सही से दिखेगा वो, ठीक है। सिमिलर चीज़ें मैं इसके साथ भी करना चाहता हूँ। इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे रो की जगह 2 कर दूंगा, और मैं इस बार बॉर्डर लेफ्ट में दूंगा और पैडिंग लेफ्ट में दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार। तो नाउ यू कैन सी दैट इसने यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया, पैडिंग लेफ्ट में, और यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुका है लेफ्ट साइड में। तो ये दिस इज़ लुकिंग क्वाइट गुड, बट अभी मुझे टेक्स्ट एरिया पे भी करना है थोड़ा सा काम, और थोड़ा सा काम इस पर भी करना है, ठीक है। चलो आई थिंक अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको रैपर क्लास पे आते हैं। देखो जो रैपर क्लास है ना, इस रैपर क्लास को थोड़ा अलग करते हैं बटन से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कंटेनर के बाद रैपर पे लिखता हूँ मैं डॉट रैपर, ठीक है। तो रैपर क्लास को हम क्या कंट्रोल्स देंगे, तो हम एक काम करते हैं, रैपर क्लास को एक तो बॉर्डर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बॉर्डर देते हैं, और बॉर्डर में देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और CCC, ठीक है। ये बॉर्डर काफ़ी सही लगेगा। और एक बॉर्डर रेडियस देते हैं, थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस विच इज़ लेट्स से 10 पिक्सल इज़ गुड, ठीक है। लेट्स गो बैक एंड यू कैन सी नाउ कि हमने अब अपने पूरे के पूरे टेक्स्ट एरिया को और ये जो चीज़ें थी इन सबको हमने एक बॉर्डर दे दिया है, ठीक है। चलो ग्रेट। और अब एक काम और करेंगे, देखो जो हमारे पास ये जो है ना टेक्स्ट इनपुट, मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल्स और टेक्स्ट इनपुट के बीच में एक लाइन आ जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी जो कंटेंट है हमारा वो टेक्स्ट एरिया और इसके बीच में कोई लाइन नहीं है, राइट। तो मैं एक लाइन लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्ट इनपुट वाली क्लास पे हम बॉर्डर लगा देंगे एक, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं डॉट, इस वाली क्लास पे बॉर्डर बॉटम लगा देते हैं। बॉर्डर बॉटम से 1 पिक्सल हम दे देंगे बॉर्डर सॉलिड और सेम कलर का CCC, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन आ चुकी है, ठीक है, ग्रेट। तो काफ़ी सही लग रहा है। अब थोड़ा सा सिलेक्ट पे हम थोड़ा सा CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो बैक एंड यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अभी इनपुट एरिया पे हमें काफ़ी चीज़ें लगानी है, बट यहाँ पे सिलेक्ट पे लगाते हैं थोड़ी सी चीज़ें। तो
सिलेक्ट पे काम करते हैं, सिलेक्ट पे क्या करेंगे, एक तो बॉर्डर उसका नन कर दो, मेरे को बॉर्डर नहीं लगता उसका सही, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉर्डर नन हो चुका, बॉर्डर नहीं आ रहा, जैसे पहले बॉर्डर आता है बॉर्डर नहीं आ रहा। एक चीज़ और करूँगा, देखो जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो ना तो ये ब्लू ब्लू हो जाता है क्लिक करने के बाद, तो इसको बोलते हैं आउटलाइन। आउटलाइन इसकी नन कर दो, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा दो उसका, 18 पिक्सल कर दो, फिर पैडिंग दे दो उसको थोड़ा सा, और थोड़ा मार्जिन दे देते हैं इसमें, ठीक है। मार्जिन रखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि टॉप से वो थोड़ा मार्जिन, देखो जब मार्जिन देते हो तो वो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में चलता है, तो मैं टॉप और बॉटम से ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहता, बट मैं लेफ्ट एंड राइट से मेंटेन करना चाहता हूँ थोड़ा सा मार्जिन, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 0 पिक्सल, लेट्स से 15 पिक्सल, 0 पिक्सल, ये टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से भी मैं थोड़ा 15 पिक्सल मेंटेन करना चाहता हूँ। और अब देखते हैं कि हमें क्या मिला, देखो थोड़ा सा ने मेंटेन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से राइट से, ठीक है। टॉप बॉटम से इतना नहीं है बट ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ लुकिंग क्वाइट गुड, ठीक है। राइट से थोड़ा और कर लेते हैं 20 पिक्सल, थोड़ा नहीं ठीक है, आई थिंक उतना ही ठीक है, 15 ही ठीक है, चलो ग्रेट। तो दिस इज़ लुकिंग क्वाइट गुड नाउ। तो सिलेक्ट पे हमने जो लगाना था मैं लगा दिया। अब एक काम करते हैं, बटन को थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा स्टाइल। तो बटन पे चीज़ें लगाते हैं, देखो मैं चाहता हूँ कि बटन की विड्थ 100% हो, उसके बाद थोड़ा पैडिंग मेंटेन करे वो चारों तरफ से, 15 पिक्सल का पैडिंग इनफ है। फिर मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर उसका कुछ ना हो, मैं चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक करूँ तो आउटलाइन भी ना आए, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि कलर जो हो उसके अंदर का टेक्स्ट वो वाइट हो, तो लिख सकते हो आप वाइट। उसके जो बैकग्राउंड कलर है मैं चाहता हूँ कि वो बैकग्राउंड कलर उसका वही हो जो हम हमेशा देते हैं, 600044। तो बैकग्राउंड हो गया। थोड़ा सा एक काम कर सकते हो, बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि पॉइंटर बन जाए वो, ठीक है, एरो ना आए, वहाँ पे हैंड आना चाहिए। मार्जिन दे सकते हो थोड़ा सा, कि मार्जिन ऊपर से दे दो बस, कि वो जो टॉप हमने बनाया था ना रैपर वाला एरिया, उससे कंट्रोल जो है, कंट्रोल से थोड़ा सा नीचे दिखना चाहिए बटन, तो थोड़ा सा दे देते हैं उसको, लेट से 20 पिक्सल का मार्जिन दे दिया हमने, ठीक है। इसके अलावा फिर हम फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं इसको, कि जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट वाला जो एरिया है उसमें हम उसको 18 पिक्सल के आसपास का दे दो, ठीक है। और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे दो, तो लेट्स से 5 पिक्सल का काफ़ी है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ, लेट्स ट्राई टू सी इट कि हमने क्या बना लिया। तो देखो काफ़ी सही हमारा बटन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन दे दिया है, बटन का टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया है, दिस इज़ रियली लुकिंग गुड। अब थोड़ा सा जो हमें काम करना है वो इस टेक्स्ट एरिया पे करना है, ठीक है, इन टेक्स्ट एरियाज़ पे काम करना है, तो वो थोड़ा सा करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको। अभी देखो हमने आइडियली क्या किया है, हमने देखो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पे भी बॉर्डर है, यहाँ पे भी बॉर्डर है, और यहाँ पे भी बॉर्डर है, लेफ्ट में सब जगह बॉर्डर है, बट टेक्स्ट एरिया का अपना खुद का भी बॉर्डर है। तो मैं एक काम करूँगा कि मैं टेक्स्ट एरिया के सारे बॉर्डर्स को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि एनीवे मेरे पास चारों तरफ बॉर्डर है, ठीक है। और मैं ना बीच में एक लाइन चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इस टेक्स्ट एरिया को ना, ये वाला जो टेक्स्ट एरिया है राइट वाला, उसका लेफ्ट बॉर्डर सिर्फ दूंगा, बाकी बॉर्डर्स नहीं दूंगा। तो इसका पूरा बॉर्डर खत्म कर दूंगा, इसका पूरा बॉर्डर खत्म कर दूंगा, और सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर दूंगा एक, तो बीच में वो एक लाइन दिखेगी, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, टेक्स्ट एरिया पे यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया की मैं कुछ हाइट करना चाहता हूँ फिक्स, लेट्स से 250 पिक्सल के अराउंड, ठीक है। फिर बॉर्डर में चाहता हूँ उसका नन, मैं उसकी आउटलाइन भी चाहता हूँ नन, कि क्लिक करूँ तो उस पर ब्लू ब्लू ना आए। उसकी विड्थ कर दो आप 100%, कि जितने भी स्पेस वो लेगा उसमें 100% उसकी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर रेडियस की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेंटेन ही नहीं कर रहा। इसके अलावा उसको रीसाइज एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी एक काम करता हूँ, अभी बॉर्डर को दिखाता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना, ये वाला जो, ये आप उसको रिसाइज कर सकते हो, ऐसे रिसाइज कर सकते हो। तो ये रिसाइज प्रॉपर्टी भी मैं नहीं चाहता, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पे रिसाइज प्रॉपर्टी हटा दो, रिसाइज नन, ठीक है। आपने रिसाइज प्रॉपर्टी बनाया, कब आप इसको रिसाइज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा थोड़ा सा पैडिंग दे दो। पैडिंग का मतलब है कि टेक्स्ट एरिया के अंदर जो आप लिखोगे ना, उसमें आप पैडिंग दे रहे हो, कि वो थोड़ा सा मेंटेन करेगा डिस्टेंस टेक्स्ट एरिया से। और जो भी आप इसके अंदर लिखोगे उसका फ़ॉन्ट साइज़ दे दो, कि वो फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल के आसपास हो, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज़ क्वाइट लुकिंग लाइक दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड। तो अभी देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और देखो हमें सही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 टेक्स्ट एरिया है, एक टेक्स्ट एरिया यहाँ पे, एक टेक्स्ट एरिया यहाँ पे है। दूसरा वाला थोड़ा सा इनविजिबल है इसलिए वो दिख नहीं रहा। बट एक चीज़ और भी है, देखो ये जो है ना, इसको मेरे को बॉर्डर रेडियस देनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा कट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, बॉर्डर
रेडियस दे देता हूँ इसकी थोड़ा सा 10 पिक्सल के आसपास। मैं दिखा देता हूँ, एक बार बॉर्डर को नन करता हूँ। अभी प्रॉब्लम ये है कि वो 2 टेक्स्ट एरिया अलग अलग आ रहे हैं, देखो ध्यान से। अभी रीसाइज तो नहीं होगा क्योंकि रीसाइज हमने नन कर दिया, बट दो अलग अलग टेक्स्ट एरिया एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको एक सेम रो के अंदर आए। तो सेम रो के अंदर कब आ सकते हैं? ठीक है, सेम रो के अंदर तब आ सकते हैं अगर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जाओ, ये 2 टेक्स्ट एरिया है, अगर मैं टेक्स्ट इनपुट वाली क्लास पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ तो, क्योंकि जितना भी इस डिव के अंदर कंटेंट होगा उसको सबको एक रो में चाहता हूँ, तो टेक्स्ट इनपुट वाली क्लास पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। तो कहाँ है टेक्स्ट इनपुट वाली क्लास? ये रही, इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो आप, तो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इससे करने से क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये 2 टेक्स्ट एरिया एक रो के अंदर आ रहे हैं जो कि 100% विड्थ को मेंटेन कर रहे हैं। अब आप बॉर्डर हटा दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं बॉर्डर नहीं चाहता ये वाला। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो बैक टू दिस टेक्स्ट एरिया, बॉर्डर को कर दो नन। अब देखो आपको दिखेंगे नहीं, आइडियली यहाँ पे 2 टेक्स्ट एरिया, एक लेफ्ट में और एक राइट में, बट वो तो आपको दिख नहीं रहे। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ राइट वाले टेक्स्ट एरिया पे ना एक बीच में लेफ्ट वाला बॉर्डर सिर्फ मेंटेन करना चाहता हूँ, या फिर आप फर्स्ट वाले टेक्स्ट एरिया पे भी राइट बॉर्डर लगा सकते हो, या फिर राइट वाले बॉर्डर पे लेफ्ट बॉर्डर लगा दो, लाइक राइट वाले टेक्स्ट एरिया पे लेफ्ट बॉर्डर लगा दो, कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक काम कर सकते हैं, जो आपका जो, अगर देखो आप, तो मैंने क्लास दी थी टू टेक्स्ट, तो टू टेक्स्ट वाली क्लास को मैं एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, बॉर्डर लेफ्ट। आप अदरवाइज आप फ्रॉम टेक्स्ट पे बॉर्डर राइट भी लगा सकते थे, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं बॉर्डर लेफ्ट देना चाहता हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड, और वही कलर जो सब जगह पे कलर हमने यूज़ किया है, ठीक है। और इसका थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे दो, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, देखो अभी मैं एक काम करता हूँ, लेट्स गो बैक एंड सी इट। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे बॉर्डर मेंटेन कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने पूरे टेक्स्ट एरिया को बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है 10 पिक्सल का। तो अगर मैं लेकिन यहाँ पे बॉर्डर पिक्सल इसका 0 कर दूँ, बॉर्डर रेडियस, देखो प्रॉब्लम क्या होगी उससे। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस उसका 0 कर देता हूँ, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ पे तो सही हो जाएगा, बट देखो राइट साइड में वो कट कर दे रहा है, यहाँ पे राइट साइड का बॉर्डर को वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला 0 हो, ये वाला 10 हो, फिर ये वाला भी 0 हो और ये वाला भी 0 हो। तो मैं क्या करूँगा कि टॉप कुछ नहीं रखूँगा, राइट ये कर दूंगा, फिर लाइक नीचे वाले को 0 रखूँगा और लेफ्ट वाले को भी 0 रखूँगा, ऐसे करके मैं दे सकता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या होगा, एंड नाउ यू कैन सी दैट वो हमने अचीव कर लिया। देखो काफ़ी हद तक हमारा जो डिज़ाइन हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, ठीक है। तो CSS हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऑप्शंस में मैं लैंग्वेजेस चाहता हूँ, तो वो लैंग्वेजेस के लिए मैं काम करता हूँ ना कि यहाँ पे SRC फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ लैंग्वेजेस नाम की, ठीक है, languages.js। तो इसमें मैं एक मैप बना के रख लूँगा लैंग्वेजेस का, ठीक है। वो मैप ये मैप आपको मिल जाएगी फाइल। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें सारे लैंग्वेजेस के और लैंग्वेज के नाम के कोड्स अवेलेबल है, एंड तो मैंने एक मैप बनाया, उस मैप के अंदर मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया लास्ट में, ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। अब मैं क्या करूँगा, आप इस मैप को चाहो तो सीधा यहाँ पे भी बना सकते थे, बट वो काफ़ी अजीब दिखता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। मैंने कहा इंपोर्ट लैंग्वेजेस फ्रॉम लैंग्वेजेस, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ गया है उसमें, ठीक है, लैंग्वेजेस। और अब मैं क्या करूँगा, इस लैंग्वेजेस, अब देखो इस पर आप होवर करोगे तो ये एक मैप है, इस मैप के अंदर मुझे इटरेट करना है, और मैं चाहता हूँ कि वो ऑप्शंस मैं यहाँ पे भर दूँ, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, बेसिकली व्हाट आई वांट इज, मैं इन दोनों को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, और देखो मैं अब HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। तो जब आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो आप ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस लगाओ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, तो मैप पे इटरेट करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एंट्रीज के अंदर आप दे दो कि किस पे आपको इटरेट करना है, लैंग्वेजेस। अब आप मैप कर लो उनको, तो मैं मैप करूँगा उनको 2 चीज़ों के बेसिस पे, ठीक है। किस किस के बेसिस पे, कोड एंड नेम, क्योंकि पहली चीज़ उसमें की जो है उसमें वो है, की इसमें कोड है और वैल्यू उसकी नेम है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं करूँगा, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा HTML कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो अब जो HTML में लिखा था वो आप यहाँ पे लिख दो, ऑप्शन ऐसे करके ऑप्शन लिख दो, और अब यहाँ पे दे दो इसकी। तो इसका जो यहाँ पे होगा बेसिकली यहाँ पे आएगा नेम, क्योंकि मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ नेम, बट उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगा उसका कोड, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो वैल्यू हो गई उसकी कोड, और नेम हो गया। अच्छा यहाँ पे की भी दे दो आप, तो की इज़ गुड, तो की देना सही रहता है। तो की लाइक कोड दे सकते हो, वैल्यू दे सकते हो, लाइक कोड दे सकते हो, नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो हमने ऑप्शन बना दिया, एंड सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे इसके अंदर भी, क्योंकि मैं सारी लैंग्वेजेस को लोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये काम मैंने यहाँ पे भी कर दिया। अब देखो, अब नाउ इफ़ आई जस्ट शो इट टू यू, तो देखो यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। तो दिखेगा आपको लैंग्वेज का नाम, बट इंटरनली जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आइडियली उसकी सिलेक्ट जो हुई होगी वो कोड हुआ होगा सिलेक्ट, ठीक है। क्योंकि जो हम API यूज़ करेंगे ना यहाँ पे, वो कोड मांगता है। अगर आप देखो ध्यान से, वो लैंग्वेज पेयर में कोड मांगता है ना कि लैंग्वेज का नाम, कोड मांगता है। तो इसलिए वैल्यू में हमने क्या सेट किया, यहाँ पे वैल्यू में हमने सेट किया कोड, और नाम हम डिस्प्ले करेंगे नाम, एक्चुअल नाम, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी हद तक हमने ये इसका कंप्लीट कर लिया है।
अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी की तरफ, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, देखो मैं चाहता हूँ, आपको पता होगा कि वेनेवर वी प्ले विद रिएक्ट, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट का, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट में कुछ लिख रहा हूँ, अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इसके अंदर अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल इस पर नज़र रखे और वो वेरिएबल के अंदर तुरंत ही डेटा अपडेट हो जाए। तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू। तो मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें स्टेट मैनेजमेंट रखूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेट मैनेजमेंट करूँगा इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जो कंटेंट है उसका। सिमिलरली एक स्टेट वेरिएबल में मेंटेन करूँगा कि टू वाले के अंदर क्या टेक्स्ट है ना। फिर मैं एक स्टेट मैनेजमेंट करूँगा कि फ्रॉम वाली कौन सी लैंग्वेज सेलेक्टेड है, तो जैसे मैं कोई भी सिलेक्ट करूँगा तो वो वेरिएबल के पास वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का कोड आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो एक वेरिएबल होगा जो कि टू वाली लैंग्वेज को मेंटेन करेगा कि कौन सी लैंग्वेज मेंटेन्ड है। और ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है रिएक्ट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, और इफ़ यू नीड सम एग्जाम्पल लाइक इन रिएक्ट टू अंडरस्टैंड स्टेट मैनेजमेंट, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं उस पर भी एक अच्छे से कोई वीडियो बना दूंगा, प्रोजेक्ट के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है। बट इन दिस वीडियो आई ट्राई टू अज्यूम दैट यू ऑलरेडी नो इट, ओके। तो हम स्टेट मैनेजमेंट करेंगे, कुछ मल्टीपल वेरिएबल्स को मेंटेन करेंगे जो कि इन पर्टिकुलर चीज़ों पे नजर रखेगा कि इस टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या है, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या है, हमने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, हमने कौन सी टू लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेट वेरिएबल्स यहाँ पे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सिंटेक्स होता है कॉन्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्रॉम टेक्स्ट पे नजर रखूंगा, फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन में यूज करूंगा सेट फ्रॉम टेक्स्ट, और इसको मैं यूज करूंगा यूज स्टेट, और इस इनिशियली मैं मान के चल रहा हूं कि एम्प्टी वैल्यू है। सिमिलरली मैं एक टू टेक्स्ट बना दूंगा यहाँ पे, तो टू टेक्स्ट होगा, तो सेट टू टेक्स्ट मान के चल रहा हूं इनिशियली, वो भी एम्प्टी है, ठीक है। फिर मैं अपना मेंटेन करूंगा फ्रॉम लैंग्वेज, ठीक है, कि कौन सी अभी लैंग्वेज सेलेक्टेड है। तो इसी तरीके से सेट फ्रॉम लैंग्वेज हो जाएगी, उसके लिए फंक्शन, और यूज स्टेट करूंगा। अब इनिशियली आप चाहो तो कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज दे सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इनिशियली सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश, तो आप सर्च कर लो इंग्लिश, तो मैं ये वाला कोड देता हूँ इंग्लिश का, तो बाय डिफॉल्ट आप ये वाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये वाला कोड, ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कॉन्स्ट टू लैंग्वेज, ठीक है। और इसको मैं कर लूँगा यूज स्टेट, और इसके लिए जो टू लैंग्वेज है मान लो मैं हिंदी वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो लेट मी जस्ट राइट इट हिंदी ओवर हियर, एंड आप ये वाला कॉपी करो यहाँ से, और आप इसको ये पास कर दो कि बाय डिफॉल्ट हमने इंग्लिश लैंग्वेज मान ली कि इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, और हिंदी वाली ये वाली सिलेक्टेड है, ठीक है, ग्रेट। अब एक काम करते, देखो अभी मैंने चार स्टेट वेरिएबल बनाए हैं। नाउ इफ यू गो बैक, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट हो रहा है, तो हमने ना वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करी। अगर मैं उन वेरिएबल की वैल्यूज को अपने एचटीएमएल के अंदर कॉन्स्टेंटली दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखनी पड़ेगी दिखाता हूँ, देखो। तो मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पे भी मैंने जहाँ पे मैंने लैंग्वेज को सिलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे चलते हैं एक बार, ठीक है, दिखाता हूँ। तो मैंने लैंग्वेज को कहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ये रहा सिलेक्ट, ये सिलेक्ट है मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू इज इक्वल्स टू, कि मैं जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिखाना चाहता हूँ वो एक एचटीएमएल वेरिएबल है, क्या है, फ्रॉम लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, जो टू वाला है टेक्स्ट एरिया उसको मैं टू लैंग्वेज दे दूंगा, टू लैंग्वेज वेरिएबल दे दिया, ठीक है। अब देखो मैंने इसको सेव किया, तो अब वो क्या करेगा, वो उस वेरिएबल से वैल्यू उठाएगा। देखो मैंने हिंदी दी, और यहाँ पे इंग्लिश दी, यहाँ पे हिंदी दी, ठीक है। अगर मैं चेंज कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने इसके अंदर सेलेक्ट की हुई है, अगर मैं उसको कुछ और कोड दे दूंगा तो वो कुछ और कोड जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये दे देता हूँ, ठीक है, क्रोएटिन करके जो भी है लैंग्वेज, इसको यहाँ पे देता हूँ, और अब मैं वापस से क्रोम पे जाता हूँ, देखो ये कोई अलग लैंग्वेज सेलेक्ट करके मेरे को दे रहा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू जो भी पास करोगे, और इस वैल्यू को अगर आप अपने एचटीएमएल में कॉन्स्टेंटली यूज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको ये वाली दे दी, और फ्रॉम वाले को ये वाली दे दी, और टू वाले को ये वाली दे दी, ठीक है, ग्रेट। अच्छा एक चीज़ और भी, अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, इस पर, और मैं इसको क्लिक करके ये फ्रेंच यूज़ करना चाहता हूँ, तो देखो हो नहीं रहा, वो भी क्लिक चेंज नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आप वेरिएबल को अपडेट करना होगा, आपको स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना होगा। आप सिलेक्ट भरे कर लो, बट यहाँ पे जो वैल्यू हम डिस्प्ले कर रहे हैं हमेशा वो डिस्प्ले कर रहे हैं जो कि उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, और उस वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है वो हमने सेट की हुई है, क्या, इंग्लिश। तो आप भले कितना भी चेंज कर लो वो चेंज नहीं होगा। तो हमें काम करना होगा कि ऑन चेंज प्रॉपर्टी लगानी होगी, कि अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो मेरा वो वेरिएबल भी चेंज होना चाहिए, ये फ्रॉम वेरिएबल भी मेरे पास चेंज होना चाहिए, ताकि इस फ्रॉम और टू लैंग्वेज वेरिएबल की मेरी वैल्यूज अपडेट हो सके। तो उसके लिए प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ऑन क्लिक, ठीक है, क्योंकि एक बटन की तरह, सॉरी ऑन क्लिक तो इस पर शायद नहीं काम करता, आई थिंक इस पर ऑन चेंज काम करेगा, ठीक है, ऑन चेंज, नोट कैन प्ले ऑन चेंज। तो ऑन चेंज पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं देखो ऑन चेंज पे क्या होगा, जब आप कुछ सिलेक्ट करते हो तो एक इवेंट फायर होता है, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ कि उस इवेंट पे मैं ये करना चाहता हूँ सेट टू लैंग्वेज, सॉरी ये फ्रॉम है तो सेट फ्रॉम लैंग्वेज। तो सेट फ्रॉम लैंग्वेज को मैं क्या कर दूंगा, जो भी इवेंट फायर हुआ उसका टारगेट में जो वैल्यू है, ठीक है, वो आप मैं सेट करना चाहता हूँ। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी आप कहाँ पे लगा सकते हो, ये प्रॉपर्टी आप इस पर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऑन चेंज सेट टू लैंग्वेज आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए ये यूज़ करो, और जो भी इवेंट फायर हुआ उसकी जो टारगेट की जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की वो वैल्यू वहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है। अभी लेट्स गो बैक एंड नाउ यू कैन सी इफ आई जस्ट सेलेक्ट दानिश इट विल चेंज, if I say Tibetan it will change, if I Indonesian then it will change, and it is working very well. Now let's perform the action on this exchange button. okay, exchange button पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये exchange button है और इस exchange button पे हम कुछ लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, तो वो एक बटन है, लाइक वो एक आइकन है, तो मैं उस आइकन पे ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ठीक है। कैसे लगाऊंगा कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि इस पर ना एक फंक्शन फायर कर देता हूँ हैंडल एक्सचेंज, क्योंकि बहुत सारा कोड हमें लिखना पड़ेगा तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन फायर कर देता हूँ हैंडल एक्सचेंज। तो अब इस फंक्शन की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लेट्स ट्राई टू सी दैट। हैंडल एक्सचेंज, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आप एक फंक्शन बना लो हैंडल एक्सचेंज का, ठीक है, विच इज़ वेरी सिंपल, कॉन्स्ट हैंडल एक्सचेंज, ठीक है। और ये एक फंक्शन है, एरो फंक्शन की तरह इसको बना लो, पैरामीटर कुछ लेगा नहीं। बस इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा, देखो इसके दो काम होंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास 4 वेरिएबल्स है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास 4 वेरिएबल है। एक तो आपके पास है फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है, एक आपके पास है टू टेक्स्ट, एक आपके पास है फ्रॉम लैंग्वेज, ठीक है, और एक आपके पास है टू लैंग्वेज। तो आपको चारों चीज़ें चेंज करनी होगी ना। जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर्टिकुलर बटन पे जब आप क्लिक करोगे, राइट, तो यू वांट कि ये लैंग्वेज इधर चली जाए, ये लैंग्वेज इधर चली जाए, इसका कंटेंट इधर चला जाए और इसका कंटेंट इधर चला जाए, राइट, दैट्स व्हाट यू वांट। ओके, तो क्या करेंगे हम, स्वैपिंग करेंगे बेसिकली। तो कैसे कर सकते हैं स्वैपिंग, देखो हमने बोला पहले लैंग्वेजेस को स्वैप कर लेते हैं, आप वी आर टेक्स्ट को स्वैप कर लेते हैं। मैंने कहा टेम्प वैल्यू, मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा उसकी वैल्यू को सेव कर लूँगा जो फ्रॉम टेक्स्ट के अंदर पड़ी हुई होगी, कि जो फ्रॉम टेक्स्ट के अंदर वैल्यू उसको एक वेरिएबल के अंदर ले लो और चेंज कर दो। सो सेट फ्रॉम टेक्स्ट के अंदर सेट कर दो क्या, टू टेक्स्ट की वैल्यू, ठीक है, और सेट टू टेक्स्ट के अंदर जो क्या आ जाएगा वो टेम्प वैल्यू हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमने स्टेट वेरिएबल के थ्रू दोनों का कंटेंट एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। ओके, बट अभी हो नहीं पाएगा वो, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। क्योंकि अभी जो टेक्स्ट दिख रहा है ना टेक्स्ट एरिया के अंदर, वो इन वेरिएबल्स के हिसाब से नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने वो चीज़ सेट नहीं की यहाँ पे। तो मैं बताता हूँ अभी कैसे करेंगे वो चीज़। देखो अब मैं क्या करूँगा, लेट लैंग्वेज टेम्प लैंग्वेज इज इक्वल्स टू फ्रॉम लैंग्वेज, एकदम सेम रहेगा। सेट फ्रॉम लैंग्वेज को मैं कर दूंगा टू लैंग्वेज, ठीक है, और सेट टू लैंग्वेज को मैं कर दूंगा टेम्प लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने स्वैपिंग कर दी एक तरीके से। बट अभी क्या होगा ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है हेलो दिस इज इन संस्कृत, एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन, तो देखो ये लैंग्वेज तो चेंज कर दिया उसने, बट कंटेंट चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज आपने सेट की हुई है। कैसे सेट की हुई है, देखो आपने लैंग्वेज यहाँ पे सेट की हुई है कि ऑन चेंज इवेंट आपने फायर कर रखा है, आपने सेलेक्ट की वैल्यू वो स्टेट वेरिएबल से अपडेट हो रही है। सेलेक्ट जो आपका सेलेक्ट जो टैग है उसकी वैल्यू स्टेट वेरिएबल से अपडेट हो रही है, बट क्या इन टेक्स्ट एरिया की वैल्यूज स्टेट वेरिएबल से अपडेट हो रही है, नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यूज करना पड़ेगा स्टेट वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि टेक्स्ट एरिया के अंदर जो वैल्यू आप बाय डिफॉल्ट दिखाओगे ना, वो कहाँ से आएगी, फ्रॉम टेक्स्ट वेरिएबल से आएगी, ठीक है। तो अब हम मेक श्योर करें कि जो यहाँ सॉरी नॉट सेट फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि टेक्स्ट एरिया के अंदर जो वैल्यू दिखेगी वो फ्रॉम टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर दिखेगी, और इसके अंदर जो वैल्यू दिखेगी वो टू टेक्स्ट के अंदर से दिखेगी, ठीक है। एंड नाउ इफ आई गो बैक एंड नाउ इफ आई राइट समथिंग, लेट्स से हेलो, उप्स देयर इज वन प्रॉब्लम, एंड व्हाट्स दैट प्रॉब्लम, बिकॉज ऑन चेंज हमने नहीं लगाया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर देखो अभी क्या हो रहा है, देखो मैंने बोला फ्रॉम टेक्स्ट, तो इनिशियली क्या हो रहा है, फ्रॉम टेक्स्ट वो इस पर्टिकुलर से उठा रहा है और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ये, बट हमने ऑन चेंज तो लगाया नहीं कि मैं ऑन चेंज करने पे इसको अपडेट भी तो करना चाहता हूं। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ऑन चेंज प्रॉपर्टी भी तो लगाऊंगा, ऑन चेंज। तो मैं बोल रहा हूं कि ऑन चेंज पे एक इवेंट फायर होगा, ठीक है, और वो इवेंट क्या करेगा, बेसिकली सेट फ्रॉम टेक्स्ट को कॉल करेगा, और जो भी होगा वो यहाँ से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने ऑन चेंज जब ये होगा तो एक इवेंट फायर होगा और उस पर टारगेट वैल्यू अपडेट कर देगा। और कभी भी हम टू टेक्स्ट एरिया को कभी चेंज हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमने उसको रीड ओनली किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हेलो दिस इज इन संस्कृत,
अब देखो अगर मैं एक्सचेंज बटन पे क्लिक करता हूँ तो आइडियली यहाँ का कंटेंट यहाँ जाना चाहिए और यहाँ का कंटेंट यहाँ पे जाना चाहिए, विच इज़ डन। तो यहाँ पे एम्प्टी आ गया बिकॉज 2 वाले के अंदर कुछ था ही नहीं, और यहाँ पे आ गया ये वाला, ठीक है। और देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी सही से काम कर रहा है। अब मैं कॉपी बटन पे कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं सबसे लास्ट में फेच एपीआई को कॉल करूँगा जो कि वो मेमोरी एपीआई होगी, ठीक है। तो अभी ये परफेक्टली काम कर रहा है। कॉपी बटन पे काम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू राइट द लॉजिक ऑफ कॉपी बटन। तो एक काम करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप ऐसे समझो कि जैसे कॉपी बटन है, तो कॉपी बटन पे भी जब आप क्लिक करोगे तो एक इवेंट फायर होगा, ठीक है। तो ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि एक इवेंट फायर हो, ठीक है। मान लो उसका नाम है इवेंट, और उस इवेंट पे मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहूँगा, लेट्स से हैंडल आइकन क्लिक, क्योंकि मुझे थोड़ा लॉजिक लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं सारा लॉजिक यहीं पे नहीं लिख सकता था, ठीक है। तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और मैं उसको एक काम करता हूँ, मैं इसको पास कर देता हूँ एक तो इवेंट का टारगेट, ताकि अगर मुझे कुछ भी वैल्यू को रीड करना हो तो मैं रीड कर लूँ, और मैं इसकी आईडी पास कर देता हूँ। मुझे क्योंकि पता होना चाहिए ना कि मैंने किसको पास किया है, लाइक कौन से बटन को मैंने पास कॉल किया है। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए पास कर रहा हूँ ये, ठीक है। इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं एक बार कॉन्स्ट, फिर बाकी का करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, हैंडल मैंने पेस्ट कॉपी किया था, हैंडल आइकन क्लिक। तो ये 2 चीज़ें लेगा, ठीक है। एक तो टारगेट लेगा और एक आईडी लेगा, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर आईडी को हम चेंज कर रहे हैं। और इसमें मैं क्या करूँगा, देखो इफ़ टारगेट से हम क्लास की लिस्ट निकाल सकते हैं, टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स फा कॉपी, ठीक है। तो हम कॉपी वाली क्लास को चेक कर रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा आइकन क्लिक हुआ है, क्योंकि हम सेम ही फंक्शन यूज़ करेंगे किसके लिए, इसके लिए भी, जो आपका वॉल्यूम बटन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर जो आपने जिस पर्टिकुलर बटन को आपने क्लिक किया, अगर वो कॉपी वाला बटन क्लिक हुआ है, और क्योंकि आईडी हम पास कर रहे हैं उसके हिसाब से हम करेंगे। एंड अब आईडी के लिए चेक लगा रहा हूँ कि अगर आईडी फ्रॉम है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे फ्रॉम वाले बटन को करना है। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ कॉपी कंटेंट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे फ्रॉम टेक्स्ट। तो जो भी स्टेट वेरिएबल में वैल्यू मेंटेन्ड है वो कॉपी हो जाएगी, एल्स बाय डिफॉल्ट कॉपी कंटेंट हो जाएगा टू टेक्स्ट, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अगर ये चीज़ देखते हैं अब, एल्स अगर फा कॉपी नहीं है, इसका मतलब दूसरा बटन होगा। तो दूसरे बटन में अब फिर से चेक कर लो कि अगर आईडी फ्रॉम है, ठीक है, तो मुझे जो करना है अटर टेक्स्ट करना है। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि स्पीक करेगा, इट विल स्पीक द टेक्स्ट वॉट एवर इट इज रिटन। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम टेक्स्ट और फ्रॉम लैंग्वेज, ठीक है। मैं लैंग्वेज भी लिखना चाहता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज में उसको बोलना है। एल्स मैं सेम काम करूंगा टू लैंग्वेज के लिए, टू लैंग्वेज के लिए, ठीक है, टू टेक्स्ट और टू लैंग्वेज, ठीक है। ये मेरा पास अटर हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब मैं एक काम करूँगा, देखो सेम चीज़ में ये सारी चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी, ये मैं हर जगह सेम पास कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दूंगा सेम ही चीज़, और सेम चीज़ मैं लिखूंगा अपने टू वाले के लिए भी, दोनों आइकन्स के लिए। तो यहाँ पे बस आईडीज़ की 2 कर दूंगा, और यहाँ पे भी आईडीज़ की 2 करूँगा। अब एक सिंगल मेथड मेरे लिए कॉपी और वॉल्यूम दोनों को हैंडल कर रहा है, ठीक है, ग्रेट। तो अब हम एक काम करते हैं, कॉपी फंक्शन और अटर फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू राइट अ कॉपी फंक्शन, कॉन्स्ट कॉपी कंटेंट, ठीक है। तो उसमें हमें क्या मिलेगा, आई थिंक कॉपी वाले में टेक्स्ट मिल रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा टेक्स्ट मिलेगा मेरे को, और मेरे को क्या करना है, तो आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ही होता है नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट। तो राइट टेक्स्ट एक मेथड होता है, वो टेक्स्ट को लेगा और वो कॉपी कर लेगा। अब इसके बाद आप अगर कंट्रोल V करोगे ना कहीं पे, तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा। और साथ के साथ हम बना लेते हैं अटर टेक्स्ट फंक्शन, अटर टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये 2 चीज़ें लेगा, एक तो टेक्स्ट लेगा और एक लैंग्वेज लेगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर देखो एक आपके पास वो होता है कॉन्स्ट, लाइक विंडो होता है आपके पास, विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस। इसका ऑब्जेक्ट आप बनाओ, इसका ऑब्जेक्ट बना के आप लेट से इसको सिंथ में वर्ड दे देता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल बनाओ अटरेंस, ठीक है, और इसका आप एक बनाते हो नया ऑब्जेक्ट स्पीच सिंथेसिस अटरेंस इज अटरेंस, ठीक है। ये लेता है आपके वो टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये अटरेंस का आपने बना लिया। अब आप क्या करोगे, इस अटरेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू लैंग फंक्शन अप्लाई करोगे,
मतलब अटरेंस के पास एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट होता है, उसको लैंग्वेज आप असाइन कर दो, तो आपने लैंग्वेज अपडेट कर दी। और अब इस वेरिएबल के थ्रू, ठीक है, सॉरी अटरेंस के थ्रू, ये अटरेंस है, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है इसको हटाओ। हाँ, अटरेंस का लैंग्वेज एट्रीब्यूट होता है, उसको आप लैंग्वेज असाइन कर दो। जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसके लिए एक लैंग्वेज नाम का असाइन करना होगा, और सिंथ के थ्रू अब आप अटरेंस कर दोगे। सिंथ डॉट, इसके पास एक मेथड होता है स्पीक, और उसको आप अटरेंस का ऑब्जेक्ट पास कर दो, क्योंकि अटरेंस के पास अब लैंग्वेज सॉरी टेक्स्ट भी है और लैंग्वेज भी है, तो दिस विल बी इनफ। ठीक है, ग्रेट। अगर हम इसको एक बार टेस्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल बी एबल टू लिसन इट टू और नॉट। लेट्स से मैं लिखता हूँ हेलो एंड दिस इज वर्किंग और नॉट। Okay, this should be working because I am with my microphone, so I think that's why I'm not able to hear it. But you can guys, देखो कॉपी बटन तो काम कर रहा है। If I click on this and if I try to paste it over here, paste, देखो काम कर रहा है वो paste, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ, देखो पेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो काम करेगा मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रेट। तो हमने सब कुछ काफ़ी हद तक सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अब एक चीज़ बची है बस, विच इज़ नथिंग बट हमें अब करना है ट्रांसलेट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स गो टू बटन। अब इस बटन पे हमें कुछ करने वाला है। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक हैंडल ट्रांसलेट मेथड में एक बनाऊंगा, तो ये ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू सी इट। तो इसको बनाते हैं फंक्शन को, कॉन्स्ट हैंडल ट्रांसलेट। ठीक है, और इसके अंदर हम अपने एपीआईज को कॉल करेंगे। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सिंपल एक यूआरएल बना देते हैं। ठीक है, तो हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं वहाँ से। ये यूआरएल है जो हमें कॉपी करना है। लेट्स कॉपी दिस यूआरएल। इसको कॉपी किया। ठीक है, अब हम इस यूआरएल में कुछ अपने चीज़ों को पेस्ट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो api.memory translate.net गेट क्वेरी चलेगी। क्वेरी में ये हेलो नहीं आएगा, हमें अपना खुद का टेक्स्ट देना है। तो अगर आपको खुद का टेक्स्ट देना है तो क्वेरी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपना लिख सकते हो फ्रॉम टेक्स्ट, क्योंकि आपको यही तो आपको ट्रांसलेट करना है फ्रॉम टेक्स्ट। ये पूरा वर्ल्ड हटा दो। ठीक है, ये इसके बाद आप एंड लिखो, लैंग्वेज पेयर में आपको अपनी खुद की लैंग्वेज देनी है। तो वो कैसे लिखोगे आप, $2 लैंग्वेज, लाइक दो चीज़ें आपको देनी होती है, फ्रॉम लैंग्वेज एक तो, और फ्रॉम के बाद आपको अपनी खुद की लैंग्वेज देनी होती है, तो उसको आप ऐसे लिख दोगे 2 लैंग्वेज। तो फ्रॉम से 2 आपको देना होता है। तो ये हमने एक यूआरएल बना लिया। अब इसके बाद हम फेच एपीआई कॉल करेंगे, उसको यूआरएल पास कर देंगे। फेच एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उस प्रॉमिस को हम क्या करेंगे, उस प्रॉमिस से हमें रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को जेसन में कन्वर्ट करके हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें डेटा मिल जाएगा, और इस डेटा पे हम नाउ वी विल प्ले विद दिस डेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी ये डेटा हमें मिलेगा तो हम इस डेटा को सेट टू टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस डेटा के अंदर एक रिस्पॉन्स, मैं दिखा दूंगा इसको आपको, रिस्पॉन्स डेटा आएगा। एक रिस्पॉन्स डेटा नाम का फील्ड आता है। अगर देखते हैं इन्होंने अपनी एपीआई में दिया है कि नहीं, इन्होंने अपनी एपीआई में तो नहीं दिया आई थिंक, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ ये चीज़, या मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ। मान लो मैं ये क्लिक करता हूँ इस पर, एक नए टाइम में खोलता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्स डेटा दिख रहा है। रिस्पॉन्स डेटा के अंदर ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में आपको वो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट दिखता है। तो इस वजह से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब आई थिंक दिस इज इट। एक काम करते हैं, नाउ लेट्स टेस्ट दिस, लेट्स गो बैक टू आवर प्रोजेक्ट एंड आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग इट। नाउ लेट्स से मैं लिखता हूँ हेलो इट इज रेनिंग टुडे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करता हूँ, इंग्लिश टू हिंदी, एंड यू कैन सी दैट इट इज pasting, it is copying actually. And now if I click on this copy button and if I try to paste it over here, you can see that it is basically copying it. Similarly, if I just copy this and if I paste it over here, you can see it is pasting it over here. तो दोनों ही हमारे कॉपी बटन काम कर रहे हैं। देखो एक्सचेंज बटन भी प्रॉपर काम करेगा, हिंदी और इंग्लिश प्रॉपर एक्सचेंज बटन काम कर रहा है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज रियली लाइक वर्किंग फाइन। ओके, एंड एक चीज़ और भी दिखा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ना अभी ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करूँ तो बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है चीज़ें। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम, यू कैन ऐड समथिंग इंटरेस्टिंग टू इट। तो एक काम करते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो लोडिंग करके कुछ वो दिखाए, तो एक स्टेट वेरिएबल मेंटेन करते हैं। ठीक है, मान लो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं लेता हूँ, लोडिंग करके लेता हूँ, और ये इसको सेट करने के लिए मैं सेट लोडिंग नाम का फंक्शन यूज़ करूँगा, यूज स्टेट। एंड इनिशियली मैं बोल रहा हूँ कि वो वैल्यू फॉल्स है, मैंने बोला कि अभी लोड नहीं हो रहा वो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इस पर ट्रांसलेट पे क्लिक कर रहा हूँ,
तो वो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई टेक्स्ट होगा तो वो लोड करता हुआ उसको दिखाए, ठीक है। अभी तो वो ये दे देगा क्योंकि कुछ क्वेरी नहीं है तो इसलिए वो रिस्पॉन्स में ये दिखा रहा है, बट अभी के लिए आगे चलते हैं। तो मैंने लोडिंग लिखा ही है। अब मैं बोलूँगा कि जब मैं हैंडल ट्रांसलेट फंक्शन पे क्लिक करूँगा तो मैं बोलता हूँ कि अभी डेटा लोड हो रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं सेट लोडिंग को ट्रू कर दूंगा। मैंने बोला कि जब भी मैं ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं इस सेट लोडिंग को ट्रू कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे को ये पता चलेगा कि लोड हो रहा है इस टाइम पे डेटा, राइट। चलो ग्रेट। अच्छा, जब लोड हो चुका होगा डेटा और लोड होने के बाद ये सेट टू टेक्स्ट हो चुका होगा, है ना, जब ये सेट हो चुका होगा उस टेक्स्ट एरिया के अंदर, उस टाइम पे मैं सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा वापस से कि अब डेटा लोड नहीं हो रहा, अब डेटा लोड हो चुका है, ठीक है। तो लोड होने से पहले मैंने सेट किया ट्रू, और जब लोड हो चुका उसके बाद मैंने सेट कर दिया उसको फॉल्स, लोडिंग को फॉल्स। अब ये एक स्टेट वेरिएबल है। इस स्टेट वेरिएबल के बेसिस पे मैं कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूं कि मैं ये दिखा सकता हूं कि जब डेटा लोड हो रहा होगा तो मैं ट्रांसलेट बटन की जगह पे क्या दिखा सकता हूं, लोडिंग दिखा सकता हूं या ट्रांसलेटिंग दिखा सकता हूं, कुछ भी दिखा सकता हूं, जो भी आपको सही लगे। तो हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, इस बटन पे जहां पे मैंने ट्रांसलेट लिखा हुआ है उस पर मैं एक जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगा सकता हूं। कैसे? मैंने कहा अगर लोडिंग ट्रू है, ठीक है, मतलब अगर लोड हो रहा है तो तुम दिखाओ ट्रांसलेटिंग ऐसे करके, वरना तो तुम क्या दिखा सकते हो, ट्रांसलेट टेक्स्ट, है ना, तो ऐसे करके दिखा सकते हो। एंड नाउ इफ आई जस्ट शो इट टू यू, लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू रिफ्रेश इट। मैंने कहा हेलो इट इज रेनिंग टुडे, ठीक है, इट इज रेनिंग टुडे। और अगर मैं इस पर ट्रांसलेट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो ट्रांसलेटिंग वो आपको दिखा रहा है, एंड व्हेन इट विल गेट द रिस्पॉन्स देन इट विल एक्चुअली like once again it will be converted to translate text once again, right? So I hope you have got this, and हमने काफ़ी सही तरीके से इसको बनाया। आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, इंडोनेशियन ट्रांसलेट टेक्स्ट वो उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। आप यहाँ पे पर्सियन चूज़ कर सकते हो एंड यू कैन ट्रांसलेट टेक्स्ट, देन उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो दिस वॉज द प्रोजेक्ट एंड आई होप यू हैव गॉट this completely, and you will get the entire project with the explanation in the description box. There is a link and you will be able to see everything explained there. So that's it from my side for this video, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.